Good morning, students. Today we are going to learn and discuss and understand about the chapter how do organisms reproduce. First one question arises in your mind that what is reproduction? Reproduction basically is the ability of living organism to reproduce new individual similar to them. Reproduction is essential for continuation of life on the earth. It is also helpful in addition of new species and its stability on earth. Next, it is also essential to replacement of dead organism on earth. It is also helpful in transfer of variation from one generation to next generation. Variation is very important for survival of any species on changing the condition of earth. Okay, so in reproduction organisms create new individuals of that look very much similar to themselves. This similarity between new individuals and the parent occur because of DNA. DNA means deoxyribonucleic acid. This DNA is present on chromosome of nucleus. Actually, nucleus is the site for chromosomes, and on chromosomes there are DNA, and a small piece of DNA is known as genes. Okay, so these genes are responsible for various type of character present in our body. Okay, next, so this DNA is the blueprint of all basic body design of an organism. Okay, suppose a parent bacterium having 10 chromosomes. एक बैक्टीरियम है जिसमें 10 chromosomes है उसके न्यूक्लियस में. This divide by binary fission to produce two daughter bacterium. Okay, so parent bacterium cell have to create extra copy of their chromosomes by the process called DNA copying या DNA replication before division. Actually, a bacterium has 10 chromosome and it divide into two daughter bacterium. Then both daughter bacterium must have 10 chromosomes, but parent bacterium only have 10 chromosomes. So extra 10 chromosomes have to be developed by parent bacteria, and this is developed by a process known as DNA replication या DNA duplication. Okay, before the division of bacteria, and that is why the two daughter bacterium that are produced by division या binary fission, they have similar body design to that its parent because they have same number of chromosome as their parent have. Okay, next, for newly formed bacteria. Okay, therefore the basic event in reproduction is the creation of DNA copy as well as cellular apparatus. Cellular apparatus means mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum and other cell content. Okay, एक नया सेल बनेगा, उस सेल के लिए भी 10 क्रोमोसोम चाहिए, उसके लिए भी सारे सेलुलर ऑपरेटर्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है और अदर सेल कंटेंट है, ये बहुत ज़रूरी है. अगर केवल आप उसको 10 क्रोमोसोम ही दे देंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा. तो अब देखते हैं व्हाट इज़ डीएनए कॉपी. व्हाट इज़ डीएनए कॉपी या डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन.
Okay, actually it is the process through his reproducing cells क्रिएट टू सिमिलर कॉपी ऑफ डीएनए, रेप्लिका, जैसे मूर्ति होता है उस तरह का सिमिलर कॉपी ऑफ डीएनए। जैसे हमारे हर सेल्स में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, एंड दीज 46 क्रोमोसोम हैव टू बी पास टू द अदर सेल्स व्हेन दे मल्टीप्लाई। ये क्रोमोसोम्स की संख्या मेंटेन होनी चाहिए हर सेल में। तो ये सेल में क्रोमोसोम की संख्या कैसे मेंटेन होगा? 46 क्रोमोसोम अदर सेल में कैसे पहुंचेंगे? बाय डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डिवाइड हो, सेल डिवाइड हो विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन के, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी रिड्यूस्ड। ओके, so this is not possible. It is process through which a reproducing cell create two similar copy of DNA, and thus two daughter cells formed are exactly similar to each other and their parents। जैसे हम लोग एक पेरेंट की तरह ही और भाई बहन दिखते हैं। नेक्स्ट, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एक्चुअली इज नॉट 100% एक्यूरेट। डीएनए कॉपी जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। ओके, सम एरर्स in DNA copying may create such individual which can survive but with slightly different variation in their body design। जैसे हम सभी भाई बहन एक तरह एकदम एग्जैक्टली नहीं दिखते, थोड़ा सा हमारे में विभिन्नताएं आ जाती हैं। हमारा भाई कुछ डिफरेंट दिखेगा और हम कुछ डिफरेंट दिखेंगे, है थोड़ा सा वेरिएशन, बट वी लुक लाइक सिमिलर। So this variation is very essential. Why essential? Because these variations created in an organism is helpful for survival in ever changing environment. So evolution takes place by this way. Importance of DNA copying, ये क्वेश्चन आता है। Importance of DNA copying, what is the importance of DNA copying? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑफस्प्रिंग। ये पेरेंटल कैरेक्टर को उसके बच्चे में ट्रांसफर करता है डीएनए। ड्यू टू द सम एरर इन डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विल आल्सो अकर इन ऑफस्प्रिंग विच इज़ यूजफुल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज। नया स्पेसीज बनने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जब से अर्थ आया है तब से बदलता जा रहा है। तो अगर हमारे डीएनए आने वाले जनरेशन में नहीं बदलेगा, उसी तरह रहेंगे, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है वेरिएशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट। वेरिएशन मीन्स स्लाइटली differences among individual of same species। Okay, so variation allow organism to exist in diverse habitat या niches। वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। सब तरह के एक ही तरह के लोग हो जाएंगे तो कंडीशन बदलेगा, और अगर एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेज आते हैं तो सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन अगर उनमें कुछ वेरिएशन है तो कुछ लोग सर्वाइव कर जाएंगे, जिससे कि वो स्पेसीज बच जाएगा। इन द अब्सेंस ऑफ a species may remain restricted to a particular niches या area। Okay, if this were get drastically altered due to the various natural, suppose meteorite heat या drought या man made cause जैसे ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण सपोज करिए अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं वो सर्वाइव करेंगे, और जो बैक्टीरिया लो टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं वो सारे मारे जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो दैट इज़ द केस वेयर वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी स्पेसीज। ओके, ये क्वेश्चन सारे आते हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट से है। ओके, हाउएवर इफ सम वेरिएशंस आर प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल, दे वुड सर्वाइव and they would help them to colonize and survive in particular habitat। But if variation are present in a single organism, then there would be very little chance
फॉर इट्स सर्वाइवल। अगर एक दो लोगों में वेरिएशन होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट सर्वाइवल तब आसान होगा जब ये वेरिएशन बहुत सारे ग्रुप में हो। सो वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज, इट इज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हो सकता है मर जाए। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं बच्चों। देयर आर टू टाइप ऑफ, मेनली टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट we are going to talk about asexual reproduction or asexual reproduction. Reproduction involves only single organism is called asexual reproduction. Okay, what are the characteristics of asexual reproduction? It is given here. The new individual produced after cell division are always genetically identical, or you can say they are the clone. When these individuals created by asexual mode of reproduction, they are identical, they are the clone of parent. It is rapid mode of multiplication. Asexual reproduction is the mode of rapid multiplication. बहुत तेजी से ग्रो होता है, उनकी संख्या बढ़ती है। जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन डिवाइड करता है और बहुत तेजी से उसकी संख्या बढ़ती है, इसी तरह वायरसेस भी। नेक्स्ट, it does not involve the fusion of gametes या sex cell, sperm या zygote. There is no formation of gametes, that is sperms, male gamete, and ova या egg, female gamete, and no fusion of these two. Yeah, you can say there is no fertilization. Okay, so in our course there are 6 type of asexual reproduction has been reported. First one is fission या सेल डिवीजन, नेक्स्ट वन फ्रैगमेंटेशन, ओके, एंड थर्ड वन इज रीजनरेशन, फोर्थ वन इज बर्डिंग, फिफ्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एंड सिक्स वन इन स्पोर फॉर्मेशन. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट these all mode of asexual reproduction. First one is fission. Fission मीन्स ब्रेकिंग डाउन. फिजन का मतलब होता है टूटना या सेल डिवीजन भी इसको कहते हैं. फिजन इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू या मोर देन टू डॉटर सेल्स. ओके, इट इज कॉमन मेथड इन मेनी बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉमन मेथड है इस तरह के रिप्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन. तो बाइनरी फिजन में क्या होगा, सेल्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. इन बाइनरी फिजन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट, स्प्लिट इनटू टू पार्ट, टू हाफ ड्यूरिंग द सेल डिवीजन टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म. सो मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एक्सेट्रा, दे डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. इन बाइनरी फिजन जनरली न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड. ओके, इन बाइनरी फिजन देखिए, न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट फर्स्ट डिवाइड टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड. ओके, साइटोप्लाज्म बाद में डिवाइड होता है. जैसे देखिए इसी में हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अमीबा विच इज गोइंग टू डिवाइड बाय बाइनरी फिजन. ओके, हियर this is the amoeba have no definite shape. Okay, it change its shape. This is nucleus, this is cytoplasm. Okay, and here in third step nucleus of amoeba is going to be divided. Okay, nuclear division. Next cytoplasm divide and then they form two daughter amoebae. Then this is the binary fission in case of amoeba. Amoeba can divide in any plane, but some unicellular organisms like Paramecium leishmania, which have whip-like body structure at one end, there is binary fission in different orientation. ये बीच से डिवाइड होता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है. ओके, देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, दिस इज द पैरामीशियम एंड दिस पैरामीशियम इज हियर डिवाइड.
हियर न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड, 2 न्यूक्लियस होते हैं इसमें, एंड न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड एंड देन डॉटर न्यूक्लियाई डिफ्रेंशिएटेड। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। तो इन इट द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। मल्टीपल फिजन में बहुत सारे डॉटर सेल बनते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली मल्टीपल फिजन इज अकर इन अनफेवरेबल एंड फेवरेबल कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में होते हैं। एंड इट्स न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड, न्यूक्लियस बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होता है। देन फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड एंड फॉर्म मेनी डॉटर सेल्स। तो डॉटर प्लाज्मोडियम में बना है। प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट, इसी से मलेरिया होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन। फ्रेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा, पीसेस। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीसेस हैव कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। सो स्पाइरोगाइरा, लोअर क्लासेस में आपने देखा होगा। स्पाइरोगाइरा इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, ग्रीन सिल्की स्ट्रक्चर्स, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, एंड दे सिंपली मल्टीप्लाई बाई ब्रेकिंग डाउन। हर पीस टूट जाता है पीस में और हर पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। नेक्स्ट वन इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब नया फिर से बन जाना। मेनी fully differentiated organism have ability to give rise the new individual from its body part। मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट उसका टूट गया और ये सारे टूटे हुए पीस डीजनरेट होकर के नया एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। दिस इज इन केस ऑफ हाइड्रा एंड प्लानेरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो, ये होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए हियर रीजनरेशन इन प्लानेरिया। अब देखिए प्लानेरिया क्या है। दिस इज द प्लानेरिया, इट कट इनटू 3 पीस, ईच पीसेस देन फुली ग्रोन प्लानेरिया। ओके, सारे पीसेस फुली ग्रोन प्लानेरिया में बन जाते हैं। तो वाई रीजनरेशन अकर इन सम लोअर क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए रीजनरेशन इज कैरी आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। क्या हमारा अंगुली टूट जाए तो क्या हम पूरे एक अंगुली से, टूटे हुए अंगुली से पूरा आदमी बन सकते हैं? नहीं। छिपकली का पूंछ टूट जाता है तो क्या उस पूंछ से छिपकली बनती है? नहीं। बिकॉज these multicellular organism like us, they have various organ system in our body, and there is no cell which only single cell which can develop into a different kind of organ system. But in case of planaria hydra, they have a specialized cells, and these specialized cells undergo changes to become various types of tissues. These changes actually proliferate and make large number of cells. That is why pieces of this organism can develop into a fully grown organism. जैसे प्लानेरिया एंड हाइड्रा हैव सिंपल मल्टीसेलुलर बॉडी which give rise to new generation. बट अभी हमने बताया, बट कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस, मैमल, हम लोग जैसे हैं, हम लोगों में कोई टूटे हुए पार्ट से पूरा बॉडी डिजाइन नहीं होता, बिकॉज वी डोंट हैव सच स्पेशलाइज्ड सेल्स विच कैन कन्वर्ट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. ओके, नेक्स्ट देखिए बर्डिंग. सो बर्डिंग आपने लोअर क्लास में देखा हो. ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा एंड ईस्ट used to regenerate for the production of reproduction in the process of budding. Actually hydra and yeasts form a simple outgrowth which repeated cell division at a specific site. These birds then develop into a new fully grown organism and then detach from the parent cell and form daughter organism. Okay, suppose this is हाइड्रा. हाइड्रा में देखिए ये बर्ड बन रहा है छोटा सा, एंड बर्ड नाउ ग्रोइंग बर्ड बन गया. ये ग्रोइंग बर्ड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल एंड देन दिस न्यू इंडिविजुअल डिटैच फ्रॉम हियर
एंड सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। ये अलग होकर के फिर अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। इसी तरह बर्डिंग इन ईस्ट, ईस्ट इज अ फंगस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बर्डिंग टेक्स प्लेस इन ईस्ट, ओके, अंडर फेवरेबल कंडीशन न्यूक्लियस ऑफ ईस्ट divide first and then cytoplasm divide. Here this is nucleus, this is nuclear division and nuclear further cytoplasm divide and form two daughter buds. Okay, next देखिए आप, नेक्स्ट है हाँ yes, spore formation, asexual reproduction through spore formation. Spore formation, okay, production by the reproduction by the formation of spores is common in very bacteria and fungus. Okay, actually spores are the single cells which are covered with thick wall. The in broad ब्रेड मोल्ड, आपने ब्रेड देखा होगा, उसमें एक फंगस होता है जिसको कहते हैं राइजोपस या ब्रेड मोल्ड, जो सफ़ेद सफ़ेद होता है. दिस ब्रेड मोल्ड डेवलप अ ब्लॉब इन स्टिक स्पोरेंजिया एंड दिस स्पोरेंजिया फॉर्म्स स्पोर्स. दिस स्पोर्स व्हेन स्पोरेंजिया रप्चर, स्पोरेंजिया जब रप्चर हो जाता है तो स्पोर्स सारे एयर में आ जाते हैं. ओके, और एयर में फिर जब कंडीशन फेवरेबल होता है, मॉइस्चर होता है, तो ये फिर उग आते हैं और नया प्लांट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस. दिस इज राइजोपस, ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. द स्पोर आर एक्चुअली राइजोपस फॉर्म अ स्पोरेंजिया. दिस पार्ट, दिस थ्रेड लाइक पार्ट, वाइट पार्ट जो देखते हैं आप, वो हाइफी होता है और वो हाइफी बनाता है स्पोरेंजियोफोर एंड स्पोरेंजियोफोर फॉर्म स्पोरेंजियम एंड स्पोरेंजियम फॉर्म स्पोर्स. इसी स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं. जब ये स्पोरेंजियम मेच्योर हो जाता है तो स्पोर्स सारे हवा में तैरने लगते हैं. ओके, दिस इज द स्पोर. इट इज़ कवर्ड विथ थिक वाल. ये थिक वाल है. स्पोर्स उसको गर्मी, हॉट, अब देखिए हॉट, कोल्ड, अब्रेशन, साल्ट, किसी भी एसिड से इसको बचाता है स्पोर्स. और जब इसको कंडीशन फेवरेबल मिलता है तो स्पोर वहाँ पर उग आता है और धीरे से डेवलप होकर के राइजोपस बनाता है. ओके, नेक्स्ट देखिए, vegetative propagation. Vegetative propagation, it is the mode of asexual reproduction in which different parts of plant like root, stem, leaf develop into a new plant. Okay, so reproduction other than seed in plant is known as vegetative reproduction. There are two types of vegetative reproduction: natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. First one is natural vegetative propagation. Okay, natural देखते हैं हम. Natural method of vegetative propagation, जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं. रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो को आप ज़मीन में लगा दीजिए, सॉइल में कर दीजिए, उसमें बर्ड्स होंगे, बर्ड्स ग्रो करके न्यू प्लांट बनाएंगे. नेक्स्ट, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स सच एज राइजोम्स. जिंजर में देखिए पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं, उसको भी अगर आप सॉइल में डाल देते हैं तो वो नया प्लांट बना लेता है. सिमिलरली बनाना, गार्लिक, अनियन, दिस ऑल आर द फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड स्टेम एंड दे कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट बाय नेचुरल वेजिटेटिव propagation. Okay, some other examples, some plant can also grow through leaves, जैसे bryophyllum. This is the bryophyllum and grow with leaves. Some plant like bryophyllum develop adventitious bud. ये bud है, देखिए ये notches पर bud है, notches पर bud है. These buds develop roots and new plants, और ये न्यू प्लांट फिर डिटैच होकर के और सॉइल में नया प्लांट बना लेगा. दिस इज द पोटैटो ट्यूबर. पोटैटो ट्यूबर के हर आइज, जिसको बर्ड कहते हैं, इस बर्ड से नया ग्रोइंग बर्ड एंड प्लांट्स डेवलप हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. आर्टिफिशियल, अब आर्टिफिशियली कैसे करते हैं? इट इज मैन मेड एंड डेवलप बाय फार्मर्स एंड हार्टिकल्चर्स. कमर्शियली प्रोपागेशन ऑफ क्रॉप्स. इसको कमर्शियली क्रॉप प्रोपागेशन के लिए यूज करते हैं हम. इसमें क्या करते हैं? कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. देयर आर
3 कॉमन मेथड, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कटिंग देखते हैं हम। कटिंग में क्या करते हैं, वी कट स्मॉल पीसेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, रूट, लीफ, किसी का भी कट करके और उसको फिर हम ज़मीन में लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर केन है तो शुगर केन के 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस को कट करेंगे और उसको ज़मीन में सॉइल में लगा देंगे, वो फिर नया प्लांट आ जाएगा। या जैसे रोज़ है, जैस्मीन, रोज़, ग्रेप्स, इन सब में ये करते हैं। मनी प्लांट में भी कटिंग करते हैं। नेक्स्ट है लेयरिंग। In layering, roots are artificially induced on the stem branches before they detach from the parent plant। जैसे ये है, देखिए स्टेम है पेरेंट प्लांट का, इसका ब्रांच इसको सॉइल में ला दिए और ये सॉइल में जब ब्रांच लाएंगे तो इस ब्रांच से यहाँ पर रूट डेवलप होगा एंड दिस रूट डेवलप अ न्यू प्लांट। दिस इज फॉर्म बाई लेयरिंग न्यू प्लांट, और यहाँ से इसको कट कर लेंगे, देन इसको डिटैच कर लेंगे। ओके, दिस इज द लेयरिंग। Next one is grafting. This is the grafting. It is the method in which plant of two plants are joined in such a way that they grow as a one. Okay, rooted plant in which grafting is done is known as stalk। जिसमें ग्राफ्टिंग किया जाता है उसको कहते हैं स्टाक, और जिस प्लांट का ग्राफ्टिंग किया जाता है उसको कहते हैं सियान। एंड दिस इज, ये बांधने के लिए कहते हैं इसको ग्राफ्टिंग, किसी रस्सी से बांधते हैं उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। दिस इज द ग्राफ्टिंग। मान लीजिए ये लेमन का प्लांट है, ऑरेंज का प्लांट है, और इसी किसी सिट्रस प्लांट में इसको ग्राफ्ट करना है तो ये इसमें थोड़ा सा कट लगा करके और CN को इसमें प्लेस कर देंगे, उसको बांध देंगे, देन दे ग्रो एंड डेवलप ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब है आपका एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन NCERT CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्लांट raised by vegetative propagation can be flowered earlier and then the produced by seed। जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होता है उसमें जल्दी फ्लावर और फ्रूट लगते हैं, जो कि सीड से होते हैं उसके बजाय। नेक्स्ट, इट इज़ द मेथड ऑफ प्रोपगेशन इन दोज प्लांट विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू बेयर विएबल सीड। जिसमें सीड पैदा नहीं होते, या सीड पैदा हुए तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, जैसे बनाना, सीडलेस ग्रेप, पाइनएप्पल, रोज, ऑरेंज एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ऑल प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट। ये पेरेंट प्लांट की तरह एकदम आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ईजियर लेस एक्सपेंसिव मोड ऑफ प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ईजियर और लेस एक्सपेंसिव है, बहुत कम खर्च में ये होता है। ओके, आज का वीडियो खत्म हो रहा है और दूसरे पार्ट में हम कल देखेंगे। ओके।